Greetings from the Prabha Khitan Foundation. I hope you are well and safe. I would like to welcome you all and thank you all on behalf of the foundation for joining us today to the virtual launch of the Kalam session in New York with Bollywood lyricist, poet and author Mr. Manoj Muntashir, who will be introduced to you shortly. This Kalam event is in association with Jhilmil and supported by the Consulate General of India in New York and New York University. Before we start, I would like to just brief you a bit about the foundation and what we do. Our foundation is a non-profit organization which is based in Kolkata, India, dedicated to promoting art, culture, education, literature, gender equality, and women empowerment. The foundation is founded in the 80s by late Dr. Prabha Khitan. However, we started our first literary boutique in Calcutta in the summer of 2012, and today, a bouquet of literary activities is spread around 30 cities in India and overseas. With the aim of introducing Hindi literature to a global audience and giving them an opportunity to meet outstanding Hindi writers and poets who may not have received international recognition, we launched Kalam in London in the year 2017. We are very excited to launch the first virtual Kalam session in New York today, and we are very grateful for the support of Jhilmil, the Consulate General of India and New York University. The Consul General of India in New York, Mr. Sandeep Chakrabarti, will also be joining us shortly. Now I would like to introduce you to our moderator, Mr. Anup Bhargava, who has helped us put all this together. Mr. Anup Bhargava is a technocrat by profession and a poet by heart. Anup Bhargava's love for Hindi poetry started fairly young. He wrote his first poem at the age of 9, while his poem was published 4 years later. Bhargava was the editor-in-chief of Hindi magazine at BITS Pilani. His love for poetry continued even after his arrival in the US in 1983. He has invited poets and organized Kavi Sammelan tours in American cities. Mr. Bhargava also founded a Yahoo group, Ek Kavita, in 2003 to share and spread poetry through emails. Ek Kavita today boasts of over 700 active members. Mr. Bhargava has also been associated with Kavi Kosh, the biggest collection of poetry on the internet. He was a member of the core organizing committee for 8th World Hindi Conference, New York City in 2007. The same year, the Uttar Pradesh Hindi Sansthan awarded him with the Hindi Videsh Sar Samman. His first point was being awarded Tua Hindi Samman by Indian Home Minister Rajnath Singh in 2015. Mr. Bhargava was also invited to the many prestigious Hindi conferences around the world. At present, he is working on several projects to spread Hindi across the globe using his technological expertise. Before I hand over to Mr. Bhargava, I would like to inform you that the session will go on for about 40 minutes, after which we will take questions from the audience. I request you to please click the raise your hand icon at the bottom of the screen. Type in questions. Mr. Muntashir will try and answer as many questions as possible. Now off to Anup to set the session rolling. सबको नमस्कार. Start my video. Yeah. धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है. आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है. आज हमारे बीच में मनोज मुंतशिर हाजिर हैं. फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी कविता को जिंदा रखना सचमुच बड़ा मुश्किल काम है. फिल्म इंडस्ट्री में रहकर गीत और कविता की जिंदगी को जीना जैसे फटी हुई कमीज को बार बार सीना. इन शब्दों के साथ मैं मनोज मुंतशिर भाई का स्वागत करता हूं. नमस्कार मनोज भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार अनूप जी. कम से कम 2 लोगों को तो आज जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम सब उनमें से 2 लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत शोहरत कलम ने दे दी है. उनमें एक आप हैं, एक मैं हूँ. आपका भी स्वागत है.
चलिए चलिए, तो मनोज भाई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मनोज शुक्ला आपका नाम दिया गया था आपके माता पिता ने, और अब हम आपको जानते हैं मनोज मुंतशिर से। तो मैंने जरा थोड़ी सी गूगल किया तो मुझे पता लगा मुंतशिर का मतलब क्या होता है। तो आप जरा जी। बताइए कि ये जो जो यात्रा रही मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर तक, ये कहाँ से शुरू हुई? कब आपको सबसे पहले ख्याल आया कि मनोज शुक्ला में कहीं मनोज मुंतशिर छुपा हुआ है? उसके बारे में जरा बताएंगे आप हमें। अनूप जी, मेरी जो पैदाइश है वो एक छोटा सा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का कस्बा है, जैसे अब जिला कहते हैं, पर एक जमाने में इट वाज अ वेरी स्मॉल टाउन, गांव था आप ये कह लें, गौरीगंज। तो ये लखनऊ से तकरीबन, लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में, लखनऊ से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत छोटा सा गांव था। नाम बहुत सुना हुआ है अमेठी का लोगों ने, पर ये है कि वो सारी जो बातें हैं अमेठी के बारे में वो कागजों पे ही हैं। अमेठी कभी कोई बहुत डेवलप्ड इलाका रहा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी वहां पैदाइश हुई। मैं अपने बारे में बहुत तफसील से ना बताते हुए इन नटशेल बताता हूँ कि मेरी जो मम्मी है वो प्राइमरी स्कूल की टीचर हुआ करती थी, मेरे पिताजी किसान हुआ करते थे। मम्मी मेरे इस वक्त रिटायर हो चुकी हैं, मेरे पापा अभी भी खेती किसानी करते हैं। मैं जब तकरीबन 7 साल का था, या उससे भी पहले, तकरीबन शायद 6 या 5 साल की उम्र में, एक बार मेरा कानपुर जाना हुआ किसी वजह से। और कानपुर में जेके बिरला टेम्पल है, अगर आप में से कोई गया हो तो जरूर पता होगा। तो मेरी मम्मी कहती है कि उम्र 5 या 6 साल थी, तो आई हैव टू गो बाय हर रिपोर्ट। तो जब मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा तो एक महिला किताबें बेच रही थी बैठा, बोरिया बिछा के। तो बहुत सारी किताबें थी, 25 पैसे की, 30 पैसे की, 50 पैसे की। ये उस वक्त की बात है, 81 की बात है, आपके अमेरिका आने से पहले की बात है अनूप जी। आप तो 83 में अमेरिका आए थे। तो मैंने अचानक एक देखा, एक किताब रखी हुई थी, मुकेश के दर्द भरे नगमे। अब ये मैंने देखा और मैं जिद पे अटक गया अपनी मम्मी से कि नहीं मम्मी मुझे चाहिए। मम्मी सोच रही है कि 6 साल का बच्चा, इसको मुकेश के दर्द भरे नगमे क्यों पढ़ने हैं, लेकिन मैं जिद पे अड़ गया कि चाहिए। खैर किसी तरह मम्मी ने वो किताब खरीदी। वो किताब का जो मैंने पहला पन्ना खोला तो पहले पन्ने पे जो गाना था, जो गीत था, वो था वो सुबह कभी तो आएगी, जो कि फिल्म थी। फिल्म का नाम भी यही था, वो सुबह कभी तो आएगी, राज कपूर साहब की फिल्म थी और साहिर की लिखी हुई वो नज्म थी। तो मैंने वो पूरी पढ़ डाली। ये मेरा पहला राब्ता था पोइट्री या फिल्मी पोइट्री के साथ, जो साहिर से शुरू हुआ। वक्त गुजरा, कुछ और साल गुजरे, तकरीबन शायद 2 साल और गुजरे होंगे। एक दिन अपने पापा के पुराने संदूक में मुझे मिर्जा गालिब मिल गए, दीवाने गालिब का फटा पुराना एक एडिशन, जो 1975 का एडिशन था। तो वो मैंने निकाला, दीवाने गालिब, और पढ़ना शुरू किया। बड़ी ही सख्त मुश्किल पोइट्री थी, और मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ कि हम सब गालिब के फैन बहुत हैं, लेकिन गालिब की पोइट्री को समझने के लिए एक खास तरह की जो जुबान है उसका नॉलेज चाहिए, पर्शियन खासतौर से। वो उर्दू तो होती ही नहीं है, वो तो पर्शियन है। तो जो पहले ही पन्ने पे जो लिखा हुआ था वो क्या था, मैं आपसे शेयर करता हूँ। और यही दीवाने गालिब के पहले 2 शेर हैं कि नक्श फरियादी है जिसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पै करे तनवीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। एग्जैक्टली जैसे मनीषा, सुगंधा और अनूप जी, हम, मेरा भी रिएक्शन वही था कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ लिया मैंने। खैर ये तो पता था कि अगर ये गालिब ने लिखा है तो कुछ बड़ी बात ही लिखी होगी। तो जब भी मौका मिलेगा मैं ये जबान सीखूंगा। मैं एक पंडित के घर में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी पुरोहित, बाकायदा 3 वक्त पूजा पाठ करने वाले। ऐसा कोई दिन नहीं था उनकी जिंदगी में जब उन्होंने रुद्राष्टक का पाठ किए बगैर भोजन ग्रहण किया हो। छुट्टियां रखते थे और शादियां वादियां करवाते थे, हवन करवाते थे, जाप करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। लेकिन जो शहर था छोटा सा गौरीगंज, वो बड़ा गंगा जमुनी तहजीब का था। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी अगर पुरोहित थे या पंडित थे तो उनको बाकी मजहबों से या बाकी जो और बिलीफ्स हैं, फेथ्स हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कभी नहीं था। तो जब मुझे उर्दू में बड़ी दिलचस्पी आने लगी तो मैं अपने बगल में एक मस्जिद थी मेरे घर के बगल में, तो मैं वहां जा पहुंचा। मौलाना थे एक, मैंने कहा देखिए मुझे उर्दू पढ़नी है। तो वो हंसने लगे, बोले पंडित जी मुझे भी डांटेंगे और तुम्हें भी, तुम भाग जाओ घर चुपचाप। मैंने कहा नहीं पंडित जी की आप चिंता छोड़िए, मुझे आप उर्दू सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो ये एक कायदे की किताब बिक रही है सामने, फिर से किताब, अब वो 2 रुपए की थी। तो ये 2 रुपए की किताब खरीदो और होम ट्यूशन लो इस किताब से, शायद सीख जाओ। मैंने कहा बात सही है।
तो वो 2 रुपए की किताब मैंने खरीदी और उस किताब के जरिए, जिसको कायदा उर्दू बोलते थे, मैंने उर्दू जो रस्मुल खत है, जो स्क्रिप्ट है, वो पढ़नी सीखनी शुरू की। और फिर बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आया कि मैं फर्राटेदार उर्दू पढ़ने लगा। फिर मैंने गालिब को पढ़ डाला और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ अनूप जी, तो मुझे लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा कोई उर्दू पोएट नहीं होगा जिसको मैंने चाट नहीं डाला। दैट इज द प्रिसाइज वर्ड टू यूज। और इतना पढ़ा कि लिखने लगा। ये एक छोटी सी जर्नी है। फिल्मों में आने का सिलसिला बहुत सिंपल था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं। तो एक दिन, जो मेरा टाउन है गौरीगंज, वहां से इलाहाबाद सिर्फ एक ट्रेन चला करती थी और वो भी 4 से 5 घंटे लिया करती थी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, 25 किलोमीटर पर आवर इन गुड डेज। अगर और कोई दिन गड़बड़ वाला रहा तो शायद वो 8 घंटे भी हो जाते थे। तो प्रतापगढ़ एक बीच में स्टेशन आता है, वहां गाड़ी रुकती है और ट्रेन खराब हो जाती है। अब देखें, ये बड़ा फिल्मी सा सीन था। ट्रेन खराब हो गई और हमें आके बताया गया कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे ये ट्रेन बनने में, तब तक आप लोग थोड़ा घूम टहल लो। तो बिल्ली जो है वो हमेशा दूध की तरफ भागती है और मेरे जैसा आदमी हमेशा किताबों की तरफ भागता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक AH व्हीलर की दुकान हुआ करती थी जहां बुक्स मिला करती थी। मैं वहीं भागा और मेरे हाथ आ गया साहिर का एक मजमुआ जो प्रकाश पंडित ने एडिट किया था। हिंद पॉकेट बुक्स दिल्ली में है, उनकी बुक थी वो, उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी। मैंने वो किताब उठाई, किताब का पहला पन्ना पलटा तो उस पर लिखा हुआ था जो साहिर का बड़ा मशहूर शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में, यानी दुनिया ने तजुर्बों की शक्ल में और हादसों की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं। अब ये बात मेरे दिल पे लग गई कि वाकई यार, राइटिंग का तो इससे बड़ा कोई थ्योरी, कोई फिलोसफी हो ही नहीं सकती कि जो कुछ हमें मिला है हम वही लौटाते हैं। अब ये किताब मुझे चाहिए थी। मैंने किताब का आखिरी पन्ना पलटा जहां उसका प्राइस लिखा होता है, तो प्राइस लिखा हुआ था 18 रुपीज। ये देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा अगर ये 18 रुपए मैंने यहाँ खर्च कर दिए तो इसका मतलब है कि इलाहाबाद जाने के बाद 4 से 5 दिन का मेरा जो सुबह का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, वो सेक्रीफाइस हो जाएगा या मैं उधार पे जीऊंगा। तो बड़ी देर जद्दोजहद चलती रही मेरे पेट में और साहिर लुधियानवी में। आखिर साहिर जीत गए, मेरा पेट हार गया। मैंने 18 रुपए दिए, वो किताब उठाई और ट्रेन ठीक हो गई। प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते मैंने पूरा साहिर की वो किताब पढ़ डाली और जब तक मैं इलाहाबाद पहुंचता मेरा जहन, मेरा दिल, मेरा दिमाग मुंबई पहुंच चुका था और मैं तय कर चुका था कि जो साहिर ने किया है हिंदी फिल्मी गीतों के लिए, कुछ वैसा मुझे भी करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने, मनोज जी, जब ये बात की अपने बचपन की, तो मुझे आपका एक शेर याद आ रहा है कि मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है। मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है। मेरे दिल में मेरे बचपन का गौरीगंज रहता है। तो आपने हमें गौरीगंज से बॉलीवुड तक की यात्रा जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई। तो एक सवाल जो मैं पूछने वाला था, जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया, वो ये था कि पहले जमाने में शायर हुआ करते थे, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी, जो बाद में फिल्मों में आए अपनी एक तरह से कह लीजिए जीविका बनाने के लिए, लेकिन वो मूलतः शायर हुआ करते थे जी। और एक अब कुछ इस तरह का हुआ है कि फिल्मों में लिखना उन्होंने पहले शुरू किया है और बाद में कवि बने हैं। तो आपने जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन इसमें आप कुछ और कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, कवि पहले या फिल्म गीतकार पहले? नहीं, मैं तो बाकायदा शायर हूँ पहले। तो जब मुझे साहिर की वो किताब मिली 97 की, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, तो उसके पहले तो मैं बाकायदा लिखना शुरू कर चुका था। मैं मुशायरों में जाने लगा था। ये वो वक्त था जब मेरी उम्र 21 साल की थी, लेकिन 17-18 साल की उम्र तक मैंने डॉक्टर बशीर बद्र, डॉक्टर राहत इंदौरी, मुनव्वर राना साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, ताहिर फराज, जितने भी बड़े शोराए कराम थे हिंदुस्तान के, उनके साथ मैंने मुशायरे शेयर कर लिए थे, स्टेज शेयर कर लिए थे। तो मैं प्रॉपर शायर ही हूँ अनूप जी। जो कुछ भी है सब उसके बाद है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब उसकी बात आई तो एक सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम फिल्मों में लिखना शुरू करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपको एक निश्चित समय में गीत लिख के देना है, आपको सिचुएशन दी गई है उसी पे लिखना है, आपको संगीत का मीटर दिया गया है आपको उसी में लिखना है, आपको ऐसी जबान में लिखना है जो कि हर आम आदमी समझ सके। तो ऐसे हालात में आपको कुछ लगता है कि
कैसे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कैसे चैलेंज होती है, एंड हाउ डू यू मीट दैट चैलेंज कि उन सबको बावजूद आप अपना बेहतर दे सकें? अनूप जी, देखिए ये चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चैलेंजेस से भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप इसको देखें तो। जब मैं गाना लिखता हूँ या जब मैं एक नज्म लिखता हूँ अपनी किताब के लिए या अपने लिए स्वांतः सुखाए, तो उस नज्म को दुनिया तक वो पहुंचे, उसके चांसेस कितने हैं? बहुत कम है, क्योंकि आजकल तो पब्लिशिंग जो है हिंदी की वो वैसे भी कैसी हो गई है, बहुत मुश्किल से किताबें लोगों तक पहुंचती हैं, पढ़ने का शौक लोगों में नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसकी उम्मीद तो नहीं कर सकता था कि अगर मैं अपनी किताब के लिए स्वांतः सुखाए लिखूंगा, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी कंस्ट्रेंट के लिखूंगा, तो मेरा गाना तेरी मिट्टी बनेगा, तो मेरा गाना, तो मेरा लिखा हुआ जो कुछ भी लिखूंगा वो तेरी गलियां बन जाएगा, कौन तुझे भी प्यार करेगा बन जाएगा, मेरे रश के कमर बन जाएगा, या तेरे संग यारा बन जाएगा। ये कभी होता ही नहीं। तो जब आप एक इतने बड़े मास मीडियम के लिए लिखते हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अब आपका जो हुनर है, आपका जो आर्ट है, उसको कमर्शियल कसौटियों पर भी खरा उतरना होगा। आपकी बहादुरी किसमें है कि आप उन कमर्शियल कसौटियों पर खरे उतरें और अपनी शायरी की हत्या न होने दें, अपनी पोएट्री आप तब भी बचा ले जाएं। और इसीलिए अनूप जी, जब मैं जिस दौर में यहाँ आया था, उस दौर के मैं आपको चार्टबस्टर गाने बताता हूँ। जो टॉप गाने थे वो क्या थे? जब मैं आया था तो टॉप गाना नंबर 1 पे हुआ करता था, मैं लड़का पोपो पो, तू लड़की पोपो पो, हम दोनों मिल गए, अब होगा क्या पोपो पो। ये सुपर हिट गाना था, उस वक्त का नंबर 1 का सॉन्ग हुआ करता था। पल पल न माने टिंकू जिया, जवानी का मंजन घिसे है पिया। मतलब इस तरह के गाने सुन रहा था मैं, और मुझे अचानक लगा कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं तो जो सुन के आया था वो ये था कि आशिकी जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। कैफी साहब, मैं तो ये सुन के आया था कि उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहां खिलते हैं बैठ न उन गुलजारों में। मैं तो ये सुन के आया था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाजी की, न मैं देखूं तेरी जानिब गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मैं तो ये सुन के आया था कि होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खिजा और भी छाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। तो ये सब जो मैं सुन के आया था, मैं सुन के आया था कि कैसे एक फिल्मों का शायर लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को चलते फिरते हंसी मजाक में बयान करता है, और ऐसे बयान करता है कि बड़े से बड़ा फिलोसोफर नहीं बयान कर सकता। शैलेंद्र ने लिखा था मेरा जूता है जापानी में कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे। देखिए डेमोक्रेसी, ये शायर लिख रहा है कि होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। तो ये डेमोक्रेसी का पावर था। आज देखें सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है, आम आदमी। तो इतना कुछ फिल्मी गीतों में पोटेंशियल था। ये पोटेंशियल देख के मैं आया था फिल्मों में, और मेरा जब सामना हुआ है ऐसे गीतों से, पोपो पो टाइप से, तो मैं घबरा गया हूं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि देखो जो तुम्हारे पास है तुम तो उसी हथियार से लड़ो, तुम दूसरे का हथियार छीनने की कोशिश मत करो। अगर तुम आम हो तो अमरूद बनने की जरूरत नहीं है, तुम शायर हो, देखो शायर बनकर तुम कहां तक पहुंच सकते हो। तो मैंने कभी अपनी पोएट्री कॉम्प्रोमाइज नहीं की अनूप जी, और आज अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं एक ही बात पे बहुत खुश होता हूँ और अपने आप को शाबाशी देता हूँ, अपने जमीर को शाबाशी देता हूँ कि अच्छा लिखा बुरा लिखा मुझे पता नहीं है, वो सब आप जैसे पढ़ने और सुनने वालों पे है। इतना पता है, आई नेवर सोल्ड माई सोल, मैंने पैसे के लिए कभी कोई ऐसा गीत नहीं लिखा कि जिसपे मुझे शर्मिंदगी हो। मेरा एक शेर था कि वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, शोहरतें भी हैं जरूरी लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या। तो बिका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो चलिए, आपने जो एक बात कही कि ऐसा कोई काम या ऐसा कोई गीत आप याद नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको सोचना पड़े कि आई विश आई हैड नॉट रिटन दैट, राइट? ये तो आपने जवाब दिया। अब ये बताइए कि कोई ऐसा गीत किसी और ने लिखा हो और आपने सोचा हो कि आई विश आई हैड रिटन दैट। ओ माय गुडनेस, सैकड़ों हैं, सैकड़ों। मैं आपको ऐसे कितने गाने बताऊं जो मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है ये मैंने क्यों नहीं लिखा। साहिर का लगभग हर गीत मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया।
मैं जब भी सुनता हूँ मुझे लगता है कि इस तरह से, इस सादगी से कैसी इतनी बड़ी बात कह गया ये इंसान, कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। बड़ी बात कह रहे हैं वो, छोटे तो छोटे ये शब्दों में। जी, तो जब साहिर को ये सुना, जब मजरू साहब ने लिखा रहे न रहे हम फिल्म ममता के लिए महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में, तो मुझे लगा यार ये गीत काश काश मैं लिख पाता। बख्शी साहब के लिखे हुए तमाम गीतों को सुन के लगता था कि ये मैंने क्यों नहीं लिखा। और आप देखें ये मैजिक था कि मैं भले इंस्पायर होकर साहिर से आया था इस फिल्मों की इस दुनिया में, लेकिन जब मेरा वास्ता स्क्रीन राइटिंग से पड़ा तो मैंने ये समझ लिया कि स्क्रीन राइटिंग का अगर कोई खुदा है, अगर कोई गॉड है, तो उसका नाम आनंद बख्शी है। फिल्मों की कहानी के हिसाब से गाने लिखना ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है। आपने अभी थोड़ी देर पहले अनूप जी ये बात कही कि वो कंस्ट्रेंट्स, वो उनकी बात आपने की। आप देखें कि जब आपके सामने एक फिल्म है, उस फिल्म के कैरेक्टर हैं, उस फिल्म की टोनैलिटी है, उस फिल्म का एक ग्राफ है, उस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है, उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बीवियां और उनके बच्चे, इतने सारे लोग तो अप्रूव करते हैं आपका गाना। इतने सारे लोगों के बीच में आप ऐसा क्या लिख जाएं कि आपकी शायरी भी रह जाए और इन सब की बात भी रह जाए। तो मुझे याद आता है कि सोचे आप, जब आनंद बख्शी को कहा गया होगा, जब डर की कहानी दी गई होगी, शाहरुख खान की फिल्म थी, कि देखिए ये कहानी है, इस पे गाना लिखना है आपको, और वो 150 पन्ने की स्क्रिप्ट को बख्शी साहब जैसा मजिशियन ही था जो एक लाइन में बयान कर सकता था, अपने गाने की एक लाइन में। डर की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन की कहानी है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये हुई स्क्रीन राइटिंग, इसे कहते हैं स्क्रीन राइटिंग। जब आनंद बख्शी के हाथों में आपकी कसम आती है और एक टाइटल सॉन्ग लिखना होता है, किस सादगी से कह जाते हैं वो कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। इतनी सादगी, इतनी सिंप्लिसिटी, जब ये आप अचीव कर लेते हैं तो आप बड़े शायर, बड़े कवि बन जाते हैं। जब आपको आनंद बख्शी बनना होता है तो आपको दुनिया की इतनी बड़ी फिलॉसफी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तू कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। इतना अच्छा जब आप लिखते हैं फिल्मों के फ्रेमवर्क में, तो ये मानना पड़ता है कि फिल्में छोटा मीडियम नहीं है, हमारी काबिलियत के हिसाब से हम फिल्मों को छोटा कर देते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि फिल्मी पर्दा छोटा है, या मेरे पास इतना टैलेंट है कि वो सिमट नहीं रहा फिल्मी पर्दे में, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास जितना भी टैलेंट है वो फिल्मी पर्दे पे बहुत अच्छी तरह से जाहिर हो रहा है। मैं बेहद खुश हूँ कि इसी फिल्मी पर्दे ने मुझे तेरी मिट्टी लिखने का मौका दिया। अगर यही दुनिया ना होती, यही लोग ना होते, यही सिनेमा ना होता, तो तेरी मिट्टी कहाँ से लिख पाता। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए मनोज जी, अब थोड़ी बात करते हैं कि आपको ये जो लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है। कहते हैं कि कभी दिल टूटता है तब शायरी निकलती है, या कुछ आपने अच्छा देखा, नेचर ने आपको इंस्पायर किया, या जिंदगी के जो तजुर्बात हैं उन्होंने आपको लिखने को मजबूर किया। तो ऐसे कुछ बताएंगे आप, जो सिचुएशंस जहां which inspire you to write? देखिए अनूप जी, एक बात आप जान लें कि कोई भी चीज जब टूटती, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ पूरी जिंदगी, तो मैं ये बात बड़े यकीन से और थ्योरी से प्रूव कर सकता हूँ कि कोई भी चीज जब टूटती है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी टूटता है तो एनर्जी पैदा होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। तो सबकी अपनी वजहें होंगी लिखने की, मैं दूसरों के बारे में तो तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अपनी बताइए। मेरे साथ जो था वो एक दिल टूटने वाला ही हादसा था जिसने मुझे बहुत एक्सप्रेसिव बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसके पहले लिख नहीं सकता था, लेकिन जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपका अपना है, एक तरीका लिखने का ये है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और आपने लिखना शुरू कर दिया। एक तरीका ये है कि किताबें तो आपने पढ़ी, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो आपका अपना तजुर्बा है, वो आपका अपना जाती जिया हुआ तजुर्बा है जो आपने जिया। तो मेरी जिंदगी में भी ये हुआ। मैंने पिछले कलम के इवेंट में ये बात बता दी थी और इस पे मुझे बहुत शर्म से लाल होना पड़ा, ब्लश करना पड़ा, और अब क्या छुपाना, आप भी मेरे अमेरिका वाले दोस्तों से भी। क्लास 11th में था जब मुझे पहली बार इश्क हुआ था, सो प्लीज डोंट जज मी ऑन दैट। और खतरनाक वाला इश्क हुआ, पागलपन वाला इश्क। खैर क्लास 11th और 12th जम के इश्क चला। क्लास 12th के बाद हमारा
जो स्कूल था वो बंद हो रहा था और हम सबके रास्ते अलग होने थे। कोई लखनऊ पढ़ने जा रहा था, कोई इलाहाबाद पढ़ने जा रहा था, कोई जेएनयू दिल्ली पढ़ने जा रहा था। तो जिनसे मुझे इश्क था, उन मैडम ने एक दिन अचानक मुझे कहा कि देखो बस यहीं तक कहानी, अभी तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। मैंने कहा यार मैंने तो शादी का प्लान कर रखा था, क्या बात क्या हो गई? नहीं तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो। मैंने कहा देखो दुनिया में किसी लड़की के बाप को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं होता, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम उनको समझा लेंगे, मना लेंगे, तुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते रहे इतना काफी है। नहीं नहीं वो कहते हैं कि तो ये तो शायर वायर है, पता नहीं क्या लिखता रहता है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, लाइफ में कुछ करेगा नहीं। तो मैंने कहा ओके फिर। तो वो जो मेरे फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास हैं और जो लेटर्स हैं वो मुझे वापस कर दो। और मुझे क्या लगा उस वक्त, अंदर से इतनी तड़प हुई कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट था मुझमें वो सिर्फ फोटोग्राफ्स और लेटर्स तक है, मेरा इन्वेस्टमेंट तुम में क्या था? पिछले 2 साल जिंदगी में मैंने कभी इतना रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं किया, एक भी छुट्टी नहीं मैंने मारी। बीमार हुआ, बुखार हुआ, सर दर्द है, पेट दर्द है, कुछ भी है, मैं स्कूल आया क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। मई जून की दोपहरियों में जब लोग अपने घरों में कूलर चला के एसी चला के सो रहे होते थे, मैं तुम्हारे घर के आगे वाले पार्क में स्लैंटिंग सन में खड़ा होता था ताकि तुम्हारी खिड़की खुले, मैं तुम्हें एक बार देख पाऊं। ये मेरा इन्वेस्टमेंट तुम में है, ये सब मुझे कौन वापस करेगा? वहां से, उस गुस्से से मेरी पहली नज्म ने जन्म लिया, और ये मेरी वाकई ऑफिशियली पहली नज्म आप कह सकते हैं कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैंने अनूप जी कभी इस नज्म को ना बहुत पॉलिश करने की कोशिश नहीं की, ये जैसी लिखी गई थी ये आज तक वैसी है, तो मैं आपको वैसे ही सुना रहा हूँ, उसी गुस्से के साथ सुनाता हूँ। अभी कविता पे आपकी आना ही है तो हम शुरू करते हैं और फिर बीच में हम सवाल भी पूछेंगे आपसे। जी जी बिल्कुल, लेट्स कीप इट वेरी फ्लूइड। या जी जी। आंखों, ये वो नज्म जो मैंने उनके फोटोग्राफ्स और लेटर्स मांगने के जवाब में लिखी कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, फेर के आंखें हर शय से मैं तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा, तेरी याद में जिनका खून किया वो शामें सुहानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे, वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल ख्वाबों की फसलें थी जहां अब रेत के बंजर टीले हैं, आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक आपसे फिर सवाल पूछते हैं कि सवाल अक्सर पूछे जाने वाला है और उसका जो एक अक्सर जो जवाब दिया जाता है वो मैं नहीं चाहूंगा कि आप दें। तो सवाल ये है कि आपका सबसे अच्छा काम, तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि इज येट टू कम। तो आप कुछ और बताएं कि अब तक जो आपने लिखा है उसमें से आप किसको चुनेंगे, क्या आपको अच्छा लगा? देखिए अनूप जी, ये बहुत डिसऑनेस्ट जवाब होगा अगर कोई बोले कि इट्स येट टू कम। यू नेवर नो व्हाट इज येट टू कम। आई वांट यू टू गिव अ ऑनेस्ट आंसर। तो बताइए कि आप समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ, समथिंग दैट आप चाहेंगे कि याद रखा जाए आपके नाम के साथ। बिल्कुल, और इनफैक्ट वो हो चुका है। एक गीत ऐसा है जो कि मेरी सलाहियत से, मेरी काबिलियत से, मेरी जहनियत से, मेरे फन से, मेरे हुनर से बहुत आगे निकल चुका है, और उस गाने को आज पूरा देश, इस कम से कम अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो तीनों सेनाएं हैं, वो चाहे नेवी हो, वो चाहे एयरफोर्स हो, वो चाहे हमारी आर्मी हो, वो तीनों सेनाओं का एंथम बना हुआ है। इस वक्त जब कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, तो कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा जो गाना सर्कुलेट हो रहा है वो मेरा ही गाना सर्कुलेट हो रहा है, तेरी मिट्टी। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा गीत है जहां मैंने अपना दिल निकाल के रख दिया। वो एक ऐसा गीत है जिसे लिखने के बाद मैं अंदर से कुछ दिनों के लिए खाली हो गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब के.एल. सहगल अपनी वसीयत लिख रहे थे तो उन्होंने अपनी वसीयत में एक चीज लिखी थी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी जब शव यात्रा निकले तो मेरे सिरहाने एक गीत बजाया जाए, जो गीत था
जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे, इस सहगल साहब का ही गाया हुआ गीत था, मजरू साहब ने लिखा था फिल्म शाहजहां के लिए। मैं ये हमेशा सोचता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, किसी राइटर को वो गीत कैसे मिल सकता है कि अब यही गाना बजना चाहिए मेरी आखिरी जर्नी में। जब मैंने तेरी मिट्टी लिखा तो मुझे लगा मुझे भी मेरा गीत मिल गया जो मेरी आखिरी जर्नी में बजेगा। तो आप सुने कभी वो गाना, उस गाने की जो जेनेसिस है वो कमाल थी कि जब हम उस गाने पे काम कर रहे थे, अनुराग सिंह जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, करण जौहर जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, अजीम दयानी, और को या बी प्राक, हम सब ने मिलके। तो आज भी मुझे याद है कि जब वो सिचुएशन मैंने सुनी थी तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी वजह है कि एक सिपाही अजनबी लोगों के लिए सीने पे गोली खा लेता है, जिनको वो जानता भी नहीं। वो थोड़ी जानता है कि वो अनूप जी के लिए गोली खा रहा है, वो मनोज मुंतशिर को सेफ रखने के लिए गोली खा रहा है। वो कौन सा जज्बा है वो और जब वो गोली खाने के बाद व्हेन ही इज ब्लीडिंग टू डेथ, आखिरी के 10 मिनट वो सोचता क्या होगा, उसे ख्याल क्या आता होगा? उसे ख्याल आता होगा अपने गांव का, अपनी माँ का, अपनी गलियों का, अपने शहर का। और उसे ये ख्याल भी आता होगा, उसे ये फख्र भी होता होगा कि ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सिपाही जो शहीद हो रहा है अपने आखिरी वक्त में सोचता है अपने गांव के बारे में कि सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। वो सिपाही सोचता है अपनी माशूका के बारे में, जिसको वो हीर कहता था कि ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, अब तू अकेली है, लेकिन मैं तेरे चेहरे पे उदासी नहीं देखना चाहता। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। क्या बात है, तेरी क्या मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो ये लिख के अनूप जी ऐसा ऐसा लगा कि हाँ बस ये एक ऐसा गीत है जो मैं कह सकता हूँ दिल पे हाथ रख के कि मुझे फख्र है कि ये मेरी कलम से निकला, इसका जरिया मैं बना। एक ईमानदार आंसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक और आपका जो पहलू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, लेकिन आप डायलॉग राइटर बाहुबली के लिए भी जाने जाते हैं, और मुझे याद है कि उस पे कितनी तालियां बजी थी, उनके कुछ डायलॉग्स पे सीटियां बजी थी उन डायलॉग्स पे। तो आपने एक गीतकार और एक डायलॉग राइटर, जहां तक मैं समझता हूं थोड़े अलग अलग काम हैं जी, काफी अलग है, काफी अलग अलग हैं। जी। तो मुझे जैसे याद आता है कि सलीम जावेद साहब को लिया जाए, तो जैसे सलीम साहब ने सिर्फ प्रोज लिखे, उन्होंने गीत नहीं लिखे। जावेद साहब पहले प्रोज लिखते रहे, लेकिन वो फिर बाद में गीतों की तरफ बढ़े। गुलजार साहब को लें तो उन्होंने भी प्रोज से शुरू किया और फिर वो गीतों की तरफ बढ़े। तो आप अपने आप को किस तरफ समझते हैं, और क्या किसमें आपको ज्यादा आनंद आता है, और हाउ डू यू मैनेज वेयरिंग दीज टू हैट्स एट द सेम टाइम? अनूप जी, डायलॉग्स लिखना ना बहुत बड़ा इत्तेफाक था। मतलब मैं कभी किसी तैयारी में नहीं था कि मुझे डायलॉग्स लिखने हैं। एक छोटा सा ट्रिविया मैं आपको बताता हूँ। मैं एक फिल्म के गाने कर रहा था जिसका नाम था MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। आपने जरूर वो फिल्म देखी होगी। उसके तमाम गीत बहुत बड़े हिट हुए थे। एक गाना तो बहुत बड़ा हिट था, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जी, तो वो फिल्म थोड़े दिनों के लिए पुश हो गई किसी वजह से, और वर्ल्ड कप आ गया। वर्ल्ड कप इंडिया ने 11 में जीता था ना, ये 14 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो 14-15 में वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि धोनी की कहानी पे ये फिल्म थी और धोनी से हम टच में थे, और धोनी साहब हमारे कैप्टन कूल उस वक्त भी वही कैप्टन थे टीम के, तो उन्होंने हमसे गुजारिश की कि यार पिक्चर थोड़ी पुश हो गई है तो एक गाना बना दो हमारे लिए जो हमारी टीम का मनोबल बढ़ाए।
मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो साउथ के या हमारे देश के बड़े लेजेंडरी जाने माने कंपोजर हैं MM क्रीम सर, MM कीरवानी भी उनको कहते हैं जी। तो उनके साथ मैं एक गाना बना रहा था, हैदराबाद में प्रसाद स्टूडियो है। मैं नीरज पांडे जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे MS धोनी के, तो नीरज पांडे जी, मैं और MM क्रीम सर, हम एक कमरे में बैठे हुए थे और गाना बना रहे थे। मैंने कुछ हिंदी में छंद जैसा लिखा था, मुझे याद तो नहीं है, पर ऐसा कुछ था कि धमनियों में दौड़ता है रक्त का प्रवाह आज, और छोर शौर्य का न शक्ति की है था आज, ऐसा कुछ था। ये मैं पढ़ रहा था, जैसा कि अंदाज है मेरा पढ़ने का। अचानक प्रसाद स्टूडियो के उस कमरे का दरवाजा खुलता है, एक साहब स्क्रफी बियर्ड में, बिखरे बिखरे बालों में और पैरों में एक मामूली सी चप्पल पहने हुए, वो दाखिल होते हैं और एक स्टूल रखा हुआ है कोने में, वहां बैठ जाते हैं। 10 मिनट बैठे रहते हैं और उठ के चले जाते हैं। मैंने नोटिस भी नहीं किया कि कौन आया कौन गया। मैं अपना काम खत्म करके वापस आ गया मुंबई। एक दिन मुझे SS राजामौली सर के ऑफिस से फोन आता है कि मिस्टर राजामौली वांट्स टू मीट यू। अब राजामौली का फैन इस दुनिया में कौन नहीं है, मैं बहुत बड़ा फैन था। मैंने मगधीरा देखी थी, मैंने मक्खी देखी थी, तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूँ उनसे मिलने। तो मैंने अगली फ्लाइट पकड़ी, मैं हैदराबाद गया, राजामौली सर से मिला। राजामौली सर बहुत कम बोलते हैं, मतलब मेरे एकदम अपोजिट है, वो बोलते ही नहीं है और मैं रुकता ही नहीं। तो राजामौली सर ने कहा मनोज, आई एम मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड बाहुबली। So I told him, yes sir, I have heard about the film. I mean, it's the biggest film this country has ever made. So my best wishes. So he said, I want you to work for my film. मैंने कहा, I'll be very happy to write songs for you. He said, no Manoj, I want you to write dialogues for it. तो मैंने कहा dialogues? मतलब ये क्या है, मैंने तो कभी डायलॉग लिखे ही नहीं। तो आपकी अगर पहली फिल्म शोले हो तो आप क्या करेंगे? तो खतरा है ना, पहली फिल्म आपकी मुगले आजम हो तो क्या करेंगे आप? तो मैंने सर को बड़े पोलाइटली समझाने की कोशिश की कि सर मैं गाने लिखता हूँ, डायलॉग, इतनी बड़ी फिल्म है, यू कैन गेट गुलजार साहब, यू कैन गेट एनीबॉडी, यू कैन गेट जावेद साहब, यू कैन रिक्वेस्ट हिम टू राइट बैक अगेन, बड़े बड़े लोग हैं, मैं बहुत मामूली हूँ सर, मैंने कुछ नहीं लिखा है कभी। पर अब ये कन्विक्शन देखें उनका, उन्होंने कहा कि मैंने आपको बोलते हुए सुना है और जैसा आप बोलते हैं मैं चाहता हूँ मेरा बाहुबली वैसा ही बोले। अरे वाह। अब मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले प्रसाद स्टूडियो में जब मैं बैठा हुआ था और वो दरवाजा खुला था और जो साहब दाखिल हुए थे, that was actually SS राजामौली। I couldn't say no to him because it was his conviction। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आपने तय कर ही लिया है तो मैं आपके कन्विक्शन के साथ बह जाता हूँ। And rest is history। औरत पे उठाई जाने वाली उंगली नहीं काटी जाती, काटा जाता है। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। गला। देवसेना को हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। हाथ लगाया। मेरा वचन ही मेरा शासन है। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर अवश्य देता है, ये तुम्हारा अवसर है। क्या है मृत्यु? बहुत सारे डायलॉग थे जो बहुत बड़े हिट हुए इस फिल्म के। तो चलिए मनोज जी, अब हम बढ़ते हैं अपने ऑडियंस की तरफ और बहुत सारे सवाल हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उन्हें हम लिया जाए, उनसे उनको मौका दिया जाए। तो सुगंधा जी, मैं देख रहा हूं इसमें, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा अगर अशोक व्यास जी हमारे बीच में हैं तो अशोक व्यास जी सवाल पूछना चाहेंगे? He's not the panelist. He's not in the attendance. Okay. दानिया जी ने हमें कहा था कि वो आएंगे और वो कुछ पूछना चाहते हैं। और फौजिया फरूखी जी हमारे बीच में हैं, वो शायद कुछ पूछना चाहती हैं। सुनैना काशरू हमारे बीच में हैं, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं। तो इनमें से आप इनमें से विकास भाई आ रहे हैं। विकास दांगिया जी हमारे जो यहाँ पे टीवी एशिया चैनल हुआ करती है उसके प्रोग्राम डायरेक्टर और एंकर हैं। विकास भाई, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं मनोज भाई और अनूप जी और प्रभा खेतान फाउंडेशन तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही उम्दा ये जो बातचीत चल रही है और इसका आयोजन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज भाई, सवाल आपकी जर्नी से बहुत प्रभावित हुआ और किस तरह से आप का जो सफ़र रहा और क्या क्या लिख रहे हैं, तेरी मिट्टी बहुत खूबसूरत
गीत आपका। अब सवाल ये कि कहा जाता है कि फिल्में जो हैं हमारे समाज का दर्पण है, एंड वाइस वर्सा, यू नो, इट गोज द अदर वे अराउंड एज वेल। मौजूदा जो परिस्थिति है, कलम से क्या निकलता है, आपके दिल से क्या निकलता है आज के यू नो जो समा माहौल जो बना हुआ है, एक तरह की एंजाइटी है, एक तरह का डर है कि क्या होगा आगे, और इस बीच जो आपके बीच में बसा शायर है, कवि है, वो क्या लिखने को प्रेरित होता है? विकास जी नमस्ते। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि माहौल कितना भी दुख भरा हो और उम्मीद की लौ कितनी भी मध्यम हो, पर उम्मीद बाकी है। मैं फैज अहमद फैज की 2 लाइनें आपके लिए दोहराना चाहूंगा, क्योंकि मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, बड़ा यकीन करता हूँ उन लाइनों में कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। हम एक ऐसा फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का, अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखें हम, तकरीबन अपनी 5000 साल की जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, उसमें कई ऐसे दौर गुजरे हैं जो अंधकार भरे रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाए, टिक नहीं पाए। हम हिंदुस्तानी स्टील के बने हुए हैं, हम फाइनली उस चीज पे वापस आ ही जाते हैं जिसे प्यार, मोहब्बत, अपनापन कहते हैं, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट शैल प्रिवेल, और कुछ नहीं। जी जी। सवाल मेरे जहन में और भी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि और पैनलिस्ट अगर कुछ करना चाहते हैं। अनूप जी, आई वुड लाइक, अगर मौका हो तो मुझे दीजिएगा एक अवसर सवाल और करने के लिए, लेकिन I'd like you to take the lead. Today it's your show and Manoj भाई's show. तो मैं समझता हूँ कि विकास जी एक सवाल और पूछ ही लें, जब सिलसिला जुड़ा है। ऐसी बात है तो चलिए। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आगामी क्या चीजों पर और काम चल रहा है आपकी ओर से, और एक जो बात जरूर आती है वो जहन में कि जब कोई लिखता है, एक कहानी का प्लॉट दिया जाता है, एक कहानी की मीटर, जैसे अनूप जी ने भी पूछा था ये सवाल जी, मौजूदा जो, मैं परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक माइंडसेट है ना, एक युवा वर्ग का एक अपना माइंडसेट है, अपनी एक क्यूरोसिटी है, और इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत सी चीजों के बीच में जो है एक कंटेम्प्रेरी राइटिंग का स्टाइल भी होता है। एक तो है कि आप अपनी इश्क, प्यार, मोहब्बत, रुसवाई, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी राइटिंग कुछ अलग तरीके से लिखी जाती है। उस कंटेम्प्रेरी राइटिंग के बारे में क्या कहेंगे, दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड, एंड हाउ डू यू प्लान टू प्रोजेक्ट इट ऑन द स्क्रीन? देखिए, राइटिंग किसी भी तरह की अगर दिलों को छू रही है, अगर उसमें किसी तरह का सोजो गुदाज है, तो वो राइटिंग है। मैंने अनूप जी की एक कविता अभी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सिर्फ 2 लाइनों की कविता थी कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। अब ये कंटेम्प्रेरी राइटिंग ही है मेरे लिए, कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। अब ये इतनी नर्म नाजुक, इतनी आसान शब्दों में कही गई इतनी बड़ी बात है, लेकिन इसमें आप इमेजरी देखें कितनी बड़ी है। बात बहुत सिंपल है, शब्द बहुत मामूली है, पर इमेजरी बहुत बड़ी है। तो इस तरह की राइटिंग का भी मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन फिल्मी राइटिंग का एक दायरा बड़ा मखसूस है, बहुत छोटा सा दायरा है। वहां आप चाह के भी बहुत सारी बाउंड्रीज तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दौर चला गया जब फिल्मों में कोलाज हुआ करता था गानों का। जब 8 गाने हुआ करते थे, उन 8 गानों में माँ बेटे के रिश्ते पे भी गाने हैं, होली दिवाली पे भी गाने हैं, दिल टूटने पे भी गाने हैं, पहला प्यार हुआ उसके भी गाने हैं। इतना बड़ा कोलाज था। और क्लब का भी गाना है, एक पब का भी गाना है। आज की तारीख में आपके पास 2-3 तो सिचुएशन बची हुई है। उन्हीं 2-3 सिचुएशंस को आप घुमा के बार बार अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते रहते हैं। तो ये शायद आपके सवाल से मैं डिफ्लेक्ट हो रहा हूं, लेकिन मैं ये बताऊं आपके, जब भी नॉस्टैल्जिया का जिक्र करते हुए लोग व्हेन दे स्टार्ट चेस्ट थंपिंग कि यार पहले जमाने में तो क्या गाने, पहले जमाने में तो क्या गाने, ये बात सही है, लेकिन पहले जमाने में माहौल भी बड़ा साजगार था। आज की तारीख में जब हमें गाने लिखने को कहा जाता है, हमारे सामने एक धुन होती है, उस धुन में अलिफ और बे का भी चेंज नहीं कर सकते आप, एक मात्रा भी नहीं बदल सकते। और अगर आपको धुन ऐसी मिलती है कि कभी कभी जिंदगी में अदिति, ये गाना आपने सुना होगा, कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कभी ऐसी ट्यून पे आप कोई बड़ी बात लिख भी तो नहीं सकते। आपको वो मीटर्स, वो कंपोजिशंस मिलनी बंद हो गई जो शायराना मीटर
जो फाइलातों में हुआ करते थे, जो रिदम में हुआ करते थे, वो बंद हो गए हैं मिलने। बहुत चैलेंजिंग है आज के लिए। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज साहिर साहब होते या अगर आज शैलेंद्र होते तो वो भी इस तरह के चैलेंज से गुजर रहे होते कि यार ऐसे मीटर पे कैसे मैं बड़ी बात कहूँ। बहुत अच्छे। चलिए आगे सवाल फौजिया फारूकी जी हमारे बीच में हैं। मनीषा जी उनको लाएंगे आप अगर हैं तो। फौजिया जी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उर्दू हिंदी पढ़ाती हैं। अरे वाह, क्या बात है। फौजिया जी आ जाएं। फौजिया जी। हाय, आदाब। हाय फौजिया जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, जो आप बातें कर रहे हैं, यानी जो मैसेज है, जो पैगाम है आपका, उसके अलावा जो आपका लबो लहजा है, उससे मुझे बिल्कुल घर की मिट्टी की याद आई। पैदाइश मेरी इलाहाबाद की है और मेरा वतन लखनऊ है। और मैंने गंगा गोमती से लखनऊ और इलाहाबाद के बीच बहुत सफर किया है, तो आप समझ सकते हैं। बताएं ये अब तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप अमेरिका में बैठी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि आप यहीं मेरे कमरे में बैठी हुई हैं। आप तो बहुत अपनी हाँ, लेकिन हम काम जो मेरा है, मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हूँ और हिंदी, उर्दू लिटरेचर और साउथ एशियन लिटरेचर पढ़ाती हूँ, तो मेरा वास्ता और ताल्लुक बना हुआ है। खैर, तो आपसे जो सवाल है मेरा, वो क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में है। और आपने साहिर का जिक्र किया, तो बहुत सारे साहिर के ऐसे गाने हैं कि जब आप उनको ढूंढें उनके मजमुओं में, तो एक दूसरा वर्जन मिलता है। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, वो बड़ा मशहूर है गाना कि नहीं, किसी जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो जब आप तस्दीक मशरिक कहाँ है, हाँ, तो आप ये देखिए कि सना खान तस्दीक मशरिक कहाँ है, वो एक वर्जन है, और एक जिन्हें हिंद है नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तो जबान थोड़ी अलग है और बंद कुछ अलग है। तो एक तरह से वो भी एक तरीका था बैलेंस करने का शायरी को और गीत को। तो मैं जानना चाहती हूँ, आजकल जो आपका क्रिएटिव प्रोसेस है, जब आप किसी फिल्म के लिए नहीं लिख रहे हैं और अपने लिए शायरी कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? जब आप सिर्फ गाने के धुन के मुताबिक गाना लिख रहे हैं, तो वो क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? और क्या इसकी गुंजाइश है जो साहिर के पास थी कि एक कहना चाहिए कि एक क्रिएटिव प्रोसेस से दूसरी क्रिएटिव प्रोसेस तक पहुंचकर एक गाने से दूसरा गाना बनाया जाए? फौजिया जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। और मुझे तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि ऐसा सवाल तो सिर्फ एक राइटर पूछ सकता है। हमें शायरी वारी से मेरा ताल्लुक है और एग्जैक्टली तो इतना तो मैं समझ अनूप जी सकता मेरे बड़े दोस्त हैं, हम लोग प्रिंसटन में बड़े मुशायरे वगैरह करते रहते हैं। हाँ जी, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि मैं सोचता तो पोइट्री ही हूँ। जब भी मैं फिल्मों के गाने लिख रहा होता हूँ तो मेरा जो फ्रेमवर्क है, जो मेरा बेसिक माइंडसेट है, आप इसीलिए देखें कि मेरे ज्यादातर गाने जो बहुत बड़े हिट हुए हैं, उनके मुखड़े पहले लिखे गए हैं, बाद में कंपोज हुए हैं। मैंने लीड लिया है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां, ये मैंने पहले लिखा है, बाद में कंपोज हुआ है। तो यहाँ वो जो आप कह रही हैं कि जो साहिर ने बीच का रास्ता निकाला, जो बैलेंस आउट किया, वो मैं यहाँ बैलेंस आउट कर रहा था। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ, तू हवा के जैसे चलता है, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे भी प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये भी पहले लिखा गया है जी, पहले लिखा गया है, फिर कंपोज हुआ है। तो आज जब मेरे सामने धुनें भी आती हैं, अब आप देखें, तेरे संग्यारा पहले कंपोज हुआ है, फिर लिखा गया है, तेरी मिट्टी पहले कंपोज हुआ है, फिर लिखा गया है। लेकिन खास बात यह है कि अब म्यूजिक डायरेक्टर्स थोड़ा सा लुकिंग एट द सक्सेस रेट ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई हैव डिलीवर्ड, बीट गलियां, बीट जो भी हैं सारे गाने, तो ये उनको भी समझ में आता है, ये फिल्म मेकर्स को भी समझ में आता है कि यार इन गानों में पोइट्री वर्क कर रही है। अगर ये गाने इतने बड़े हुए हैं तो सिर्फ म्यूजिक की, सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन की वजह से नहीं हुए हैं, इसमें पोइट्री बहुत वर्क कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब हवा बदली है। अब फिल्म मेकर्स कहने लगे हैं म्यूजिक कंपोजर को कि यार मनोज मुंतशिर को साइन करते हैं, लेकिन पोइटिक धुनें बनाना। तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि थोड़ा सा माहौल बदल रहा है। और इसीलिए आप सोचें कि जब आप तेरी मिट्टी सुनती हैं तो आप ये मेकआउट नहीं कर सकती कि ये पहले लिखा गया है, पहले कंपोज हुआ है। और जब मैं आपको ये न्यूज बताऊं कि पहले कंपोज हुआ है, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अगर पहले कंपोज हुआ था तो ऐसा शायराना तसलसल जो है, इसमें जो बहाव है, वो कैसे आ गया, क्योंकि धुन जो है अब बहर में बनाई जा रही है। अच्छा, बनाई जा रही है, तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है।
तो लेकिन मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं, जैसे आपको पहले धुन मिलती है ना, जी, तो जी। फिर आप क्या ऐसा है कि कोई गाना जो आपने पहले से लिखा है उससे कुछ लिया और फिर उस गाने से एक दूसरा गाना बनाया, जो मेरा कभी कभी होता है, कभी कभी होता भी है? अच्छा। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये भी बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मुझे याद आया। जब मैं, क्योंकि हम रुकते नहीं है, आपने तो गलियां के 4 अंतरे ही सुने हैं, मैंने तो 14 लिखे थे, क्योंकि वो कलम रुकती नहीं है। एक बार आप उस माहौल में चले गए, एक बार आपको सब दिखना शुरू हुआ, तो मैं उसको जीता हूँ, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिखता कि आई हैव टू जस्ट डिलीवर। तो मुझे याद है कि जब मैं गलियां लिख रहा था, तो गलियां में भी आपने 2 अंतरे सुने, लेकिन मैंने 3 लिखे थे। तो वो तीसरा अंतरा जो कभी किसी ने नहीं सुना, मैं आज आपको सुनाता हूँ। आपने एक तो वो सुना कि तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। दूसरा अंतरा आपने सुना कि कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे लम्हे ये रेशम से खो जाएं खो न जाएं हमसे। तीसरा अंतरा जो था, उससे मेरा एक और गाना निकला। तीसरा अंतरा था कि सूरज से पहले अब जागूं मैं, तुझसे ही मिलने को भागूं मैं। सूरज से पहले अब जागूं मैं, तुझसे ही मिलने को भागूं मैं, एक दिन जो बीते बेसब्री से, अगले दिन का रास्ता ताकूं मैं। वाह वाह। तो ये अंतरा लिखा, पर ये अंतरा रह गया क्योंकि फिल्म में गुंजाइश नहीं थी, और हमने ये अंतरा संभाल के रख लिया। मैं जब MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी पे काम कर रहा था, तो जो फिल्म का पहला गाना था, जहां MS धोनी बहुत यंग हैं, 15-16 साल के हैं, उनके अंदर एक खास तरह की छटपटाहट है, वो कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं पता नहीं। तो जब नीरज पांडे जी, भूषण कुमार, अमाल मलिक, मैं, हम सब परेशान थे कि इसको किस वर्ड से अटैक करें, वो वर्ड क्या होगा। तो मुझे अचानक गलियां का लिखा हुआ वो अंतरा याद आया कि एक दिन जो बीते बेसब्री से, अगले दिन का रास्ता ताकू में। तो वो गाना बना बेसब्रियां। आप जाके देखें, MS धोनी में वो पहला गाना है, बहुत बड़ा गाना था वो भी। तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपने जो एक गाना लिखा है, वो आपके दूसरे गाने का माहौल, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया। So basically it seems like this is the logistics of some creative logistics of creative writing in when you are writing for films. You have to take care of that more. Sort of was, और मैं आपको बताऊं, और आप करेंगे बाकी जो सवाल पूछने आ रहे और बहुत सारे और लोग हैं, मैं I'll let you go and then maybe we can connect at some other platform. शुक्रिया फौजिया जी, बहुत बहुत। Okay, शुक्रिया। थैंक यू फौजिया जी, बाय। हाँ मनीषा जी, आप पूछेंगे। अभिनव शुक्ला पूछना चाह रहे हैं, सतीश मलिक जी पूछना चाह रहे हैं सवाल। एक्चुअली मैं ही उनको कर सकता हूँ प्रमोट, या आप करेंगे उनको? अभिनव शुक्ला हैं, सुनैना काचरू हैं, अभिनव शुक्ला हैं। भी मेरा बुक क्यों नहीं आ रहा वीडियो? आपका वीडियो वो शुरू करेंगी मनीषा जी को। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू जी जी। शिव मोहन सिंह जी हैं मेरे ख्याल से। The video is not playing. I don't know why. अच्छा, आप सवाल पूछिए शिव मोहन जी अपना। मनोज जी नमस्कार सर। नमस्ते शिव मोहन जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ पे देख के, और मुझे भी अच्छा लगा। मेरी धर्मपत्नी भी आप जहाँ रहते हैं वहीं की हैं, तो बड़ी खुशी है आपको देख के। और आपके बारे में जो 2-3 चीजें पूछनी थी वो आपने बातों बातों में बता दी। एक तो मेरे इश्क के बारे में था कि मैंने भी इश्क किया पर आपकी तरह शायर नहीं बन सका, उसका जवाब आपने दे दिया। जो आपने कहीं और नहीं लिखा था आज वो देखने को मिल गया। और दूसरी चीज जो फौजिया जी ने पूछा है कि जो कंपोजर और धुन की बात थी वो भी आपने क्लियर कर दी, वो मेरा सवाल था। अब मैं सिर्फ 2 लाइनें आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, बस वही बात खत्म करूँ। स्वागत। हम न हमारी कश्तियां न किनारे रहे, हम न हमारी कश्तियां न किनारे रहे, ये भी क्या कम कि वो साथ हमारे रहे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत 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 तब चलता उन दिनों भोजन फाका, कभी हाथ न फैलाए जिस तरह गुजारे रहे। वाह क्या बात। पैदाइशी पे किसी का कब बस चल सका, वो सबके प्यारे और हम वक्त के मारे रहे। अच्छा है। बड़े की किताब पोशाक छोटे को मिली, रिश्ते कुछ इस तरह हम गरीबों के सहारे रहे। और आखिरी शेर है, कोई मेरे हक में अब भी दुआ पड़ता है, इस एक वक्त था हम जब उसके प्यारे रहे। वाह
बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं बढ़िया है। चाहता हूँ आपकी तरफ से ये लाइनें आपका जो इश्क है उस तक पहुंच जाएं। और अरे अब मैं मेरी कहाँ शुभकामनाएं हैं कि टच में हूँ जनाब। आप जिस मुकाम पे हैं बस उस मुकाम पे टिके रहें, क्योंकि आपने हिंदी को एक बहुत बड़ा मान दिया है। और जिस तरह से पहले गाना कंपोज होके अब धुनें बनने लगी, बस मेरा सलाम है आपको। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने हौसला बढ़ाया मेरा शिवमोहन जी। और मेरी शुभकामनाएं सर। कोशिश करूंगा कि जो आपकी उम्मीदें हैं मुझसे, मैं उन पर खरा उतरूंगा। बिल्कुल महोदय, बिल्कुल सर। सुनैना तो हमारे बीच में है। हाय, आई थिंक आई एम द नेक्स्ट शायद। ये सुनैना, हाय। हाँ, हाय मनोज, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सुनैना, आप कैसी हैं? और आपके मैं अच्छे ठीक। कैसे हैं सुनैना? मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये एक्चुअली सुनैना नहीं है, सुनैना है, जो सुनती है। आपके हस्बैंड एटलीस्ट विटफुल हैं, ये बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए कि नहीं, विटफुल उस दिन हस्बैंड इज अ ग्रेट गिफ्ट। आई डोंट नो, पर उस दिन उनको खाना नहीं मिला, ये भी सच है। ये भी आपका हक है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, कभी किसी हस्बैंड को ना उलझना नहीं चाहिए। आप अपनी बात शुरू करें इसके पहले मुझे एक वाकया याद आया। मेरे एक दोस्त हैं तिवारी जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बीवियां आपको कॉर्नर करने पे आ जाएं तो कमाल का कॉर्नर करती हैं, किसी बात पे भी कर सकती हैं। तो तिवारी जी से एक दिन उनकी बीवी ने पूछा, सुनो तुम रोज बियर पीते हो ना? तो तिवारी जी ने बोला, हाँ पीता हूँ। कितनी पीते हो रोज? बोले 2 पीता हूँ। अच्छा, एक कितने की आती है? एक आती है 150 रुपए की। 2 कितने की हुई? 300 की हुई। महीने में कितने की हो गई? महीने में 9000 की बियर पी लेता हूं मैं। साल में कितने की हो गई? अब तिवारी जी समझ गए कि अब मामला बहुत, ये गिनती बढ़ती जा रही है। तिवारी जी ने बोला, ये तो साल में तकरीबन 81,000 के आसपास की बियर हो गई। कब से पी रहे हो? बोले 30 साल तो तकरीबन हो गए। बोले मतलब तुम 24 लाख की बियर पी चुके हो। और ये नंबर सही है। अब तिवारी जी की हालत खराब, लेकिन तिवारी जी ठहरे तिवारी जी, पलटवार करते हैं। तो बेगम उनकी कहती है कि देखो, तुमने 24 साल पहले यही पैसे इन्वेस्ट किए होते तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आज तुम्हारे पास इतने पैसे होते कि तुम्हारा खुद का हेलीकॉप्टर होता। तो तिवारी जी कहते हैं, अच्छा सुनो बीवी, तुम बियर पीती हो? तो वो कहती है, नहीं मैं कहाँ पीती हूँ, मैं सब फालतू चीजें नहीं करती। तो तुम्हारा हेलीकॉप्टर कहाँ है? यस, वेरी वेल सेड। पहले तो मैं एक्चुअली थोड़ी सेल्फिश होना चाहती थी और एक कविता आपको सुनाना चाहती थी, बट प्लीज सुनाएं। आपके प्यार के लिए कुछ जो आपने कहा कि उस दिन टूट गया था और दैट वाज अ स्टार्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी, तो मैं यही कहूंगी कि तो वो दर्द है जिसके विसर्जन नहीं होते। तो वो दर्द है जिसके विसर्जन नहीं होते। वाह। टूटे रिश्तों के कभी 13 दिन नहीं होते। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा थॉट है। अभी आपको ये विश किया गया कि आप जिस मुकाम पर हैं उधर ही खड़े रहे। मैं उसकी पूरी उल्टा उसका विश करूंगी कि आप जिस मुकाम पर हैं वहां कभी मत खड़े रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आगे जो भी टेक द नेक्स्ट स्टेप। बट माय क्वेश्चन वाज, क्योंकि मैं स्क्रीन राइटिंग भी करती हूँ, अभी 2 फिल्म के लिए काम किया है, एक हाफ विडो है जिसके लिए 2 गाने भी लिखे हैं। तो अभी मेरी शुरुआत है। तो मुझे कभी कभी लगता है ये जो रास्ता है लिखने का और राइटर्स के, इट्स अ वेरी लोनली जर्नी। It has to be. So जो एक एंग्स्ट आता है एक राइटर का, तो how do you, what is the source of your creation? It's a very silly question. I don't like this question because when somebody asks me, but मुझे ऐसा लगता है कि because it's a very lonely journey, so as a writer I would like to know कि आपका जो एंग्स्ट होता है, जैसे probably केसरी के गाने के अराउंड जो हुआ, तो how do you channelize that? How do you keep yourself motivated every day when the success is not there? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, मैं ये बहुत शिद्दत से महसूस करता हूं कि हम जो भी हैं, जहां भी हैं, कामयाब हैं, नाकाम हैं, खुश हैं, दुखी हैं, मगमूम हैं, शाद हैं, जो भी हम हैं, हम अपनी बदौलत हैं, किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो ये मैं दिल से महसूस करता हूं। और इसीलिए जब भी कोई सी सिचुएशन आती है जहां के मैं एक दोराहे पे या चौराहे पे होता हूं, मुझे पता नहीं मैं किस तरफ जाऊं, तो मैं किसी की तरफ देखता नहीं हूं। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा।
तो मैं अपनी पूरी एनर्जीज चैनलाइज करता हूँ अपने अंदर से जवाब ढूंढने में, अपने अंदर से उसका हल ढूंढने में, और अक्सर मैं कामयाब रहता हूँ। जहां तक सवाल राइटिंग का है कि राइटिंग का इंस्पिरेशन क्या है, तो जानिसार अख्तर का ही एक शेर था बड़ा खूबसूरत सा कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। वाह वाह, क्या बात। तो शायद सबकी जर्नी वही है, मेरी भी जर्नी वही है कि सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सवाल क्या, एक छोटा सा था, सवाल एक Go ahead. छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। वाह, बहुत खूबसूरत। मुझे before I let go, I just have, would you recommend a book that would you recommend a book today? How many do you want me to recommend? Okay, I'm just recommending you a terrific book. You will love it. This one, मन मंथन की गाथा by Amrita Pritam. Can you see it? Yes, thank you. Please order online, and I'm sure you will thank me for having recommended you this book. Thank you, Manoj. मनीषा जी, आप अपना समय देखिए कि कितना है और कहाँ तक जाना है। और अगर संदीप चक्रवर्ती जी हमारे बीच में हैं तो उन्हें हम एक्नॉलेज करना चाहेंगे। अभिनव शुक्ला, नमस्कार। नमस्ते अनूप जी और नमस्ते मनोज जी। नमस्ते शुक्ला जी, क्या हाल चाल? मैं अच्छा हूँ। जयराम जी की बहुत आनंद आ रहा है। मैं इस समय अमेरिका के कैलिफोर्निया में हूँ और इस समय यहाँ कोरोना नामक बीमारी का कहर चल रहा है जी। और वातावरण बड़ा उदास सा था, पर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उस पर मुस्कुराती हुई बातें और दिल को छूने वाली शायरी की बातें सुनकर जो है ऐसा लगता है कि कोरोना भी कहीं डर के इधर उधर भाग गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर मुश्किल के पीछे एक कभी न कभी मौके छुपे होते हैं। यहाँ भी एक मौका है। मौका ये हजार तरह से लोग आपको कह चुके हैं, पर ये बात सच भी है कि पता नहीं कितने जमाने बाद आप अपने घर में इस तरह बैठे होंगे जब आपको किसी अलार्म का सहारा नहीं लेना, जब आपको कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। वो घर जो आपने इतने प्यार से बनाया, सजाया, अब उसकी दीवारों को आप पहली बार ध्यान से देख रहे होंगे। आपको अपने घर की दीवारों में ऐसे ऐसे रंग नजर आए होंगे जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे। निदा फाजली का बड़ा अच्छा शेर था एक जो इस कोरोना को डेडिकेटेड है, और मुझे लगता है कि दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस एंटायर जो भी हुआ है कोरोना का हादसा, कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाते सजाते एक प्रश्न जो है जो मेरे मन में है आपके लिए, बल्कि दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये है कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, कभी आपने कवि सम्मेलनों में जाने के विषय में सोचा है कि कवि सम्मेलनों में भी आप थोड़ा शिरकत और करें? और दूसरा प्रश्न भी मैं अभी पूछ लेता हूं ताकि अगला व्यक्ति जो है वो अगले जो पूछने वाले हैं उन लाइन में रहे। दूसरा प्रश्न ये है कि साहिर और शैलेंद्र, इनमें से कौन और क्यों आपको ज्यादा पसंद है, फिल्मी राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी और शायरी के पर्सपेक्टिव से भी? आपने ये पूछा मुझसे कि सूरज और चांद दोनों में से कौन आपको ज्यादा पसंद है। तो मैं ये कैसा, और ये मैं कहीं से डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। देखिए, दोनों की जो जर्नी है और दोनों का जो पोइट्री करने का तरीका है बड़ा अलग है। साहिर हार्डकोर शायर है, जिसे हार्डकोर शायर कहते हैं। साहिर कभी अपनी शायराना कदरों से अलग हटे ही नहीं, वो शायरी में खेलते रहे पूरी जिंदगी। शैलेंद्र इज मोर ऑफ अ गीतकार देन शायर। तो जब भी आप शैलेंद्र के गाने सुनते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सॉन्ग लाइक रमैया वस्तवैया फ्रॉम साहिर, क्योंकि शायर रमैया वस्तवैया लिखने के पहले 10 बार सोचेगा। हालांकि उन्होंने भी गप्पू जी गम गम लिखा, ऐसा नहीं है, लेकिन जब गीतकार लिखता है एक फिल्म की सिचुएशन पे, उसका तरीका अलग होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कभी मैं साहिर के मूड में होता हूँ और कभी मैं शैलेंद्र के मूड में होता हूँ। जब मैं शैलेंद्र के मूड में होता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सुन के कि तू और थी, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटाई न थी, आंखों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया। तो दोनों कमाल है। पहले सवाल के जवाब में कि मैं कवि सम्मेलनों में क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये फिल्मी जो राइटिंग है ना दोस्त अभिनव भाई, ये 24 घंटे का काम है। मैं कम से कम साल की 10 से 12 फिल्में करता हूँ, और 10 से 12 फिल्मों में मेरे पास इतना वक्त नहीं बचता कि मैं अपने बेटे के साथ हफ्ते में एक दिन अच्छे से गुजार पाऊँ। तो जाहिर सी बात है कि कवि सम्मेलनों में जाना नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। आप खूब प्रगति करें
और आने वाले समय में सर्वश्रेष्ठ, जब अब आज से 10 साल बाद बात हो तो प्रश्न ये हो कि शाहिर, शैलेंद्र या मनोज मुंतशिर। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत हौसला दिया और बहुत बड़ा चैलेंज भी खड़ा कर दिया, डरा दिया आपने मुझे आज। बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिनव जी। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा विलंब हो गया ज्वाइन करने में। एक्चुअली मैं एक रेडियो पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल में था डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, रेडियो जिंदगी पर, और काफी लोग उसमें जुड़ते रहे तो समय लग गया। लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट कितना खुशी हो रहा है आप सबको यहाँ पाकर इस कॉन्फ्रेंस कॉल में। पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मनोज मुंतशिर जी को। आपके नाम के अनुसार आप खुशियां बांट रहे हैं, यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। थैंक यू संदीप जी। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। और अनूप जी तो हमारे पुराने साथी हैं न्यूयॉर्क में, और लग रहा है कि ये कोविड के समय हम लोगों का प्रेम और संबंध और घनिष्ठ हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। आप इतना एक्टिव और इतने अग्रसर हैं, अग्रगामी हैं इसमें, तो बहुत अच्छा है। आप खुशियां बांट रहे हैं और सबको हौसला दे रहे हैं। ये मुझे लगता है इस वक्त सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मैं देख रहा हूँ कि संदीप भुटोरिया जी हैं क्या, पीके फाउंडेशन के, वो हमारे पुराने अजीज दोस्त हैं कलकत्ता से। और अच्छा लग रहा है कि हिंदी कविता और हिंदी साहित्य कलकत्ता में भी बहुत अच्छे तरीके से उसने जड़ बनाया है और फूल रहा है, फल रहा है। अच्छा लग रहा है देख के। और मैं कलाम फाउंडेशन और प्रभा खैतान फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी तक तो हम लोग जो कार्यक्रम करते थे वो अमेरिका बेस्ड और न्यूयॉर्क बेस्ड था, लेकिन पहली बार हम लोगों ने लगाया कि इस तरीके से जूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को हम लोगों ने जोड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो ये समस्या से हम गुजर रहे हैं ये पूरा विश्वव्यापी है, और इसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, सब लोगों को हौसला चाहिए। सब लोग गृहबंदी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जुड़ने का भी ये मौका है। और इस वक्त सबके पास समय है, लेकिन समय का उपयोग करना आना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की जो ये पहल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार और मैं क्षमा मांगना चाहूंगा देर से जुड़ने के लिए, लेकिन मैंने मनोज जी के आखिरी के कुछ वाक्य और शब्द सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो इतना मशरूफ है काम से, तो और कवि सम्मेलन में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक वर्चुअल कवि सम्मेलन में आप हमारे लिए उपलब्ध हुए और प्रस्तुत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनूप जी से कुछ कहने के लिए अनुरोध करूंगा और इस कार्यक्रम को आगे चलाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस कार्यक्रम के में किस तरीके से बाधा बनूं। संदीप जी आप बिल्कुल बाधा नहीं बने, आप देर से आए पर दुरुस्त आए, आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि अब आगे जो भी बातें हो रही हैं हमारे बीच में, आप उसमें शामिल रहें और सुने जो भी हम कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत रुचि के साथ सुनूंगा। तो हम सब मिलके एक बार जन्मदिन की भी बधाई देते हैं। आज उनका जन्मदिन। संदीप जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक। और बहुत धन्यवाद। जो सहयोग हमें मिलता रहा है हिंदी के कार्यक्रमों को करने में कौंसल आवाज का, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं संदीप जी के। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ मुझे लगता है जयदीप जी भी उपस्थित हैं। जयदीप जी नमस्ते बोलिए। वो हमारे हिंदी कौंसल आवाज के हिंदी कार्यक्रम में काफी एक्टिव रोल लेते हैं, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा समुदाय बनाया हिंदी प्रेमियों का, और उसमें अनूप जी एक अभिन्न अंग है उसका। और हाल ही में हम लोगों ने हिंदी मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, उसमें अनूप जी भी थे, और कई सारी गतिविधियां हो रही हैं। और आशा करता हूं कि हिंदी मंच का जो कार्यक्रम अक्टूबर में होगा उसमें मनोज जी को हम न्योता देंगे और वो यहाँ बॉस्टन आएंगे और हम सबसे रूबरू मिलेंगे। नहीं बिल्कुल, मेरी खुशकिस्मती। दाग देलवी का एक शेर था कि जज्बे इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार खींचे। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जयदीप जी आ गए हैं हमारे बीच में। जयदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार अनूप जी, नमस्कार मनोज जी। नमस्ते जयदीप जी। दिलचस्पी से आप, हाँ नमस्कार।
बड़ा अच्छा लग रहा था आपकी आवाज़ सुनकर। जितना अच्छा आपका चेहरा है उतनी अच्छी आपकी आवाज़ भी है। पहले आपने बताया नहीं कि आपका बेटा भी है। आप तो सोच रहे थे कि शायद दिल टूटने के बाद शायद आपने शादी नहीं की। नहीं नहीं, अरे ये सुने, ये दिल कोई पहली बार और एक बार नहीं टूटता। कतील शिफाई का एक शेर है जदीद साहब, एक कथा है उनका कि सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाओ, सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाओ, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो मनीषा जी, अब आई थिंक हमारा समय समाप्त हो रहा है, या आप कुछ और किसी को सवाल के लिए आप बुलाना चाहेंगी? Maybe just one more question we can have. जी, दीप व्यास हमें दिख रहे हैं, तो उन्हें हम पूछ। संदीप व्यास, मुझे अभी उन्होंने मैसेज करा, वो शायद हिंदुस्तान में ही है, वो न्यूयॉर्क वापस नहीं आ पाए। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। कर रहे हैं, मैं उदयपुर राजस्थान में अटक गया हूं, और जब तक वापस ये कोविड का आई थिंक सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक यहीं पर लगता है रहना पड़ेगा। नहीं तो बहुत अच्छी जगह अटके हैं आप। कोई अटके तो उदयपुर में अटके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, such a beautiful place, my hometown, संदीप जी। Yes, absolutely. Yeah, Manoj ji, namaskar. Thank you so much for such a wonderful evening. This is absolutely such a pleasant to hear you. मैं पूरे दिन भर आप ही के गाने गाता रहता हूँ। मेरी बीवी परेशान हो चुकी है कि मेरी आवाज से, गानों से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और बहुत बहुत प्यार आपकी बीवी को, उनको मेरा नमस्ते कहिएगा। जी जरूर। मेरा सवाल आपसे मेरी 4 पंक्तियों में है कि जी। खाली मन गरम आंच पर चढ़ा जैसे कोई खाली बर्तन। वाह। खाली मन गरम आंच पर चढ़ा जैसे कोई खाली बर्तन, कभी तो उबल रहा है पर कविता कहाँ है? वाह। तो कभी आप इस चीज को महसूस करते हैं संदीप जी की मनोज जी की देयर आर टाइम्स व्हेन आप लिखना चाह रहे हैं, आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं लिखने की, पर आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन ही नहीं आ रही, आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं, न शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ विचार ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ थॉट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, इसके हाउ डू यू डील विद दैट? या इसके 2 पहलू हैं। इस सवाल को मैं 2 तरह से बांट देता हूं कि एक बार तो ये है, जो इसका एक हिस्सा है वो ये है कि मैं लिखना चाह रहा हूं, मैं अपनी लग्जरी पे लिखना चाह रहा हूं और मुझे कोई थॉट नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे थॉट नहीं आ रहा है तो मैं लिखना ही नहीं चाह रहा हूं, मैं कोई जबरदस्ती करूंगा ही नहीं अपने साथ कि नहीं लिखना जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज, क्योंकि मेरा जरिया माश, मेरी रोजी रोटी भी लिखना है, तो वहां तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। वहां तो मैं किसी से ये नहीं कह सकता कि आज मुझे थॉट नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा अपना इंस्पिरेशन बाहर की तरफ ढूंढने लगता हूँ, जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। संदीप, आप ये सोच के देखिएगा कि राइटर्स ब्लॉक जैसी चीज कुछ होती नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आपको करेक्ट ट्रिगर नहीं मिला है। अगर आप अपना ट्रिगर ढूंढ लेंगे, आपका ब्लॉक तुरंत खत्म हो जाएगा। होता ये है कि हम राइटर्स अक्सर अपनी दुनिया में होते हैं, हम अपने अंदर ढूंढ रहे होते हैं, अपने अंदर कि यार ये थॉट नहीं आ रहा, ये बात नहीं आ रही, ये जो गुफा का दरवाजा है ये खुल नहीं रहा। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ठहरें और आप इंस्पिरेशन बाहर ढूंढना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपको बाहर से इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के जब मैं गाने लिख रहा था, तो एक सिचुएशन पे हम बहुत बुरी तरह फंस गए थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसके लिए क्या, कौन सा मोमेंट, कौन सी लाइन, कौन सी पंक्ति इसके लिए होनी चाहिए। मेरा बेटा उस दिन मेरे साथ घर पे था, आरू, और मैं और आरू खेल रहे थे जैसे कि हर घर में होता है कि हु लव्स यू मोर, ममा लव्स यू मोर, डैडा लव्स यू मोर, वो चल रहा था। तो इट्स अ वेरी रेगुलर हाउस होल्ड थिंग। तो आरू उस दिन अलग मूड में था और मेरा दिन खराब था, तो आरू ने मुझे बोला कि ममा लव्स यू मोर। तो मैंने कहा चल बे, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। ये आरू को बोली हुई लाइन थी जो इतने बड़े हिट गाने में तब्दील हो गई। जैसे मैंने आरू को बोला है, मुझे लगा ओ माय गॉड, दिस इज द लाइन दैट आई शुड बी यूजिंग इन माय फिल्म, कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तो ये इंस्पिरेशन बाहर से मिल जाती है और तलाशते रहें इंस्पिरेशंस। Brilliant. Thank you so much, Manoj ji. Thank you so much. Thank you, संदीप. Thank you. और आप अपना ख्याल रखें। आपका और मेरा जो इस वक्त टाइम है वो एक ही है, तो आप काफी देर तक जाग रहे हैं। आप सो जाएं, आप 11 बज गए। चलिए मनीषा जी, अब इस मुलाकात को यहाँ खत्म किया जाए
और मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे हम जुड़े रहना चाहेंगे, और जैसा संदीप जी ने कहा हम आपको रूबरू सुनना चाहेंगे। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मुझे इन संदीप जी का भी शुक्रिया और संदीप भुटोरिया जी का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से कनेक्ट किया। बहुत अच्छा गुजरा मेरा पिछला 1-1.25 घंटे में। पूरे दिन न्यूज चैनल्स के साथ बातें कर रहा था। इतनी अपनाइयत की जो गर्मी है जो बातों की, ये मुझे आप लोगों से मिली। आपसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि मैं लिख रहा हूँ, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, जब अच्छा लिखूं तो मुझे आपकी शाबाशियां चाहिए, जब मैं कभी कुछ खराब लिखूं तो मुझे आपकी आलोचनाएं भी चाहिए। मुझे मैसेज करें और बताएं कि मनोज मजा, इस गाने में मजा नहीं आया, तुम्हारी वाली बात नहीं। ये भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। आखिर में एक दुआ के साथ कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Manoj ji. Thank you so much, Anup ji. And thank you so much, Mr. Chakrabarti, for gracing us. And on behalf of the foundation, we wish you a very happy birthday. अनूप जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था, मनीषा जी अगर आप अनुमति दें, कि हमने तो मनोज जी के गाने सुने हैं पर्दे के पीछे से, लेकिन आज उनको देख के मुझे लग रहा है कि उनके अगर वो पर्दे के ऊपर भी आए, सामने भी आए, तो बहुत वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज उनको देख के तो मुझे ये हर बात का यकीन हो गया है कि इतने वो हैंडसम है, इतने सुंदर है देखने में, वो पर्दे पे के ऊपर और आगे भी आके काफी वो सफल होंगे। मैं यही कहना चाह रहा था। अब मेरे ब्लश करने की बारी है, तो जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगी मैं ब्लश करूंगा आधे घंटे आराम से। थैंक यू गुड नाइट। Thank you. Good night.